When they did not find the butter anywhere, so they searched it all around in the room, but they could not find it. And then suddenly they met again in the center straight at one. अचानक उनको वो मक्खन सेंटर में मिला और दोनों जॉर्ज एंड हैरिस looked at each other. Most extraordinary thing I ever heard, said George. जॉर्ज ने कहा आज तो मैंने जो सबसे ज़्यादा अद्भुत बात सुनी है, so mysterious, जो बहुत रहस्यमयी है, हैरिस ने कहा. Then George got round at the back of Harris and saw it. And the mysterious thing was that when George got round at the back of Harris, George जैसे ही हैरिस के पीछे गया, उसने उसको बटर को उसके पीछे देखा. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. ये हमेशा यही होता है. Where, said Harris, spin around. देखो यहाँ पर है. Stand still, सीधे खड़े रहो. Can't you? जो जोर से चिल्लाया, फिर उसके पीछे भागता हुआ. Then they got it over. उन्होंने बटर उसके पीछे से निकाला और टी पॉट में पैक कर दिया. Montmorency's ambition in life. Montmorency, now students, they have got one dog and his name is Montmorency. Montmorency was in at all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency का काम ये होता है कि काम में अड़िंगा अड़ाओ और फिर डांट खाओ. He always put his note in the things which were done at the time of packing. He used to put his nose in every affair which the three friends used to do. George, Harris and Jerome K. Jerome. If he can scream in anywhere very particularly is not wanted. अगर वो वहाँ जा सके जहाँ उसको उसकी ज़रूरत नहीं है. And be a perfect nuisance, और अपनी बेवकूफ़ी दिखा सके. And make people mad, और लोगों को पागलों की तरह के सामने बिहेव कर सके. And have things gone at his head, और and he feels his day has not been wasted. अगर वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अपने तीनों फ्रेंड्स के लिए, तब उसे लगता है कि उसने कुछ किया. अदरवाइज ही फील्स वेरी बैड दैट ही कुड नॉट डू समथिंग मिस्चीवियस someday. So he liked to do funny things and wanted always to do something problematic for the three friends, and he used to feel happy when he used to do something nonsense in the house. He used to like it and love it, and then he used to think that his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object. किसी को अपने ऊपर गिरा लेना और फिर उसकी गालियाँ सुनना उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था. And when he has succeeded in accomplishing this, और जब वो ये कर लेता था. Hello everyone. So today we are going to cover a chapter from a very humorous. His conceit, his pride becomes quite unapparent. He was very happy and used to feel very proud that he had done something mischievous, and he has and a brilliant novel. Created a problem for the three friends. He came. Now Montmorency came and sat down on things. और चीज़ों पे आके बैठ गया. Just when they were wanted to be packed. जैसे ही सामान पैक होने वाला था, Montmorency came and sat down on the things which were to be packed. And he labored under the fixed belief that, and he worked hard in the belief, और वो इस आशा से मेहनत करता रहा. Whenever Harris और George reached out their hand for anything, जैसे ही हैरिस और जॉर्ज किसी सामान को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते, he put his leg into the jam. वैसे ही उसने अपनी टांगें, जैसे उन्होंने सामान उठाने के लिए हाथ डाला, वैसे ही उसने पाँव अपने जैम के अंदर डाल दिए. And he worried the teaspoons, और सारे चम्मच इधर उधर डिस्टर्ब कर दिए, सारे चम्मच इधर उधर हिला दिए. And he pretended that the lemons were rat, और उसको ऐसा नींबू देख के उसे ऐसा लगा कि वो चूहे हैं. And got into the hamper, और वो गत्ते के डब्बे में घुस गया और उनको मारने लगा. And killed 3 of them, और 3 को उसने चूहा समझ के 3 नींबुओं को पिचका दिया और दबा दिया. और सोचा कि मैंने 3
3 चूहे मार डाले। हैरिस को लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और जैसे ही उसने ये किया हैरिस ने उसके सिर के ऊपर फ्राइंग पैन मारा टू कंट्रोल हिम। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, हैरिस ने कहा मैंने इसका हौसला बढ़ाया। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, उसने कहा मैंने इसको, उसने कहा तूने इसका हौसला बढ़ा दिया, उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। आई हैव नॉट एनकरेज हिम टू डू सच स्टूपिड थिंग्स। अ डॉग लाइक दैट डज नॉट वांट एनी एनकरेजमेंट, इस जैसे कुत्ते को तो किसी एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन की ज़रूरत ही नहीं। ही कैन डू वट एवर ही लाइक्स एनी टाइम बिकॉज ही इज़ अ मिशीवियस डॉग, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स एंड नो बडी हैज़ टू टीच हिम। इट इज़ अ नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, ये ऐसी शरारतें लेकर ही पैदा हुआ है। इट इज़ सिंस बर्थ ही इज़ सो मिस्चीवियस एंड प्रॉब्लमेटिक दैट देयर इज़ नो नीड टू टीच हिम एनीथिंग। सो फाइनली द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। अंत में पैकिंग जो थी वो 12:50 पर हो गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस जो था वो बड़े से गत्ते के ऊपर बैठ गया। एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज़ अब टूटेगी नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, अब कोई चीज़ टूट गई तो टूट गई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जॉर्ज सेड विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, और ये विचार से उसको दिमाग में कुछ शांति पड़ी कि टूट गई तो टूट गई। दे वर टेकिंग थिंग्स नाउ वेरी कैजुअली कि नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ही वॉज ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने कहा अब तो मुझे बिस्तर पे जाना है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम बिस्तर पे जाने के लिए, सोने के लिए तैयार हो गए। फॉर टेकिंग रेस्ट, हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस, हैरिस को हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम ऊपर जाकर सोने के लिए चले गए। वी टॉस फॉर बेड, अब कौन बिस्तर पे कैसे सोएगा इसके लिए टॉस हुआ। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और टॉस के कौन किसके साथ सोएगा तो टॉसिंग हुई। तो व्हेन द टॉस वाज डन, हैरिस को मेरे साथ सोना था। डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जेरोम ने पूछा क्या तुम अंदर सोओगे या बाहर। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मुझे तो बिस्तर में ही सोना है। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा तो बड़ी अजीब बात है। राइटर सेड आई विल स्लीप इनसाइड द बेड। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो, जॉर्ज ने कहा भाई तुम लोगों को सुबह कितने बजे उठा दूँ। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे उठा देना। नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, राइटर सेड नहीं 6 बजे उठाना क्योंकि मुझे कुछ लिखना भी है। आई वांट टू राइट समथिंग। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस और मेरे में इसको लेके बहस हो गई। बट दैट द लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, और अंत में जो फैसला हुआ वो हुआ कि 6:30 बजे, ना तुम्हारी ना मेरी। I will wake you up at 6:30. George said. We said. Wake us at 6:30, George. We said. हमने कहा चला उठा देना जॉर्ज। George made no answer. George ने कोई जवाब नहीं दिया। And we found on going over that he had been asleep for some time. और उसने कोई जवाब नहीं दिया, और हमने देखा कि वो कुछ समय सो लिया था। सो वी प्लेस द बाथ, जॉर्ज गेव नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, जब हमने देखा कि वो थोड़ी देर के लिए सो गया है। सो वी प्लेस द बाथ, हमने बाथ टब जो था वो उसके बिस्तर के पास रख दिया। वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग,
ताकि वो जब सुबह उठे तो लुढ़क के इस टब में गिर जाए पानी वाले. एंड वेंट टू बेड अवर्सल, और हम सोने चले गए, सो दैट दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू गेट अप एट 6:30. सो दिस इज़ द स्टोरी packing lesson. This is a part taken from a novel of Jerome K. Jerome, that is Three Men in a Boat. So children, you must have seen that the way the three friends did packing, what were the humorous, there were many humorous incidents and where you were forced to laugh, तुम्हें हंसना पड़ा, the way they were doing the packing, and all the time they are opening their bag again and again, and all the time they forget to put one thing or the other into the bag. So this is your story, packing. Now the thing which you have to do is do the question answers. The question which you don't have to do, I will find out if there is any. First question you don't have to do. Rest questions you have to do, children. Then there are, while packing the hamper, George and Harris do a number of foolish funny things. पैकिंग करते समय जॉर्ज और हैरिस ने बहुत मूर्खता के काम किए. The things which they did in the foolish things which they did, you have to put true, and the things which they did not do foolish, there you have to write false. This is a true false exercise that you can easily do. Part 3, page number 89, second question, in which you have to write in 100 to 150 words. Second question is very interesting and important. How did Montmorency contribute to the packing? Montmorency ने packing में क्या सहयोग दिया? This is a very interesting question and the answer is also very interesting. So thank you children, thank you for listening to the story Packing. I hope you must have liked it.